ओके, और एक रीडिंग आपके लिए। आज की रीडिंग में मैं असॉर्टेड टाइप की चीज़ें आपको पेश करके दूंगी, ठीक है। जो मेरे दिमाग में आएगा उस हिसाब से मैं रीडिंग लेती हूँ। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि क्या नाम है, प्रियंका का करियर रह गया था ना, उनकी ले लेते हैं। फिर बीच बीच में मैं बहुत सारे लोगों की करंट फीलिंग्स लेने की कोशिश करूँगी। और यस, करंट फीलिंग्स की अगर हम बात करें तो उसमें मेनली कौन सी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करने वाली हैं, बस वही मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो फिर आपको मालूम है मैक्सिमम टाइम कॉमन टाइप की रहती ना, तो वो चीज़ों पे हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ओके गाइस, तो यस गाइस, दिस इज सुमन, योर ओन टैरो कार्ड रीडर, and I welcome you back to my channel, Tarot Fragrance Suman. So as I always say, before you start watching the reading, you need to have that trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. So this is Priyanka's career reading. So let us see her highlighted energies. Separation, future planning, passion, fire and attraction, betrayal and third party. ओके, तो ये सारी चीज़ें इनकी आई हैं। हालांकि वी आर टेकिंग हर करियर रीडिंग, बट दीज आर द कार्ड्स विच आई गॉट। सेपरेशन, ओके, वेरी एविडेंट, मे बी सेपरेटेड, आई डोंट नो फ्रॉम होम, येस, बट देर इज सम सेपरेशन। और इफ इट इज़ अबाउट what about her career or project, then maybe currently she may not be associated with that project anymore. This is what I feel. Third party, okay, third party, okay, if she is in separation, we are talking about personal life, so there's a possibility there's some third party which she may be thinking, okay, not necessary that there is a third party, but maybe she has a doubt, maybe. Okay, now if it is about her career, then in that case, yes, separation has happened due to the entry of some third person in that project. Okay, fire, passion and attraction, and future planning. So yeah, she is very passionate about her future planning. This is what I get. Okay, anyways, with these few cards we cannot just tell you the entire story, so that is the reason we'll take help of the tarot cards. Okay, तो चलो टैरो कार्ड्स की हेल्प से देख लेते हैं क्या है ये सब। ओके गाइस, तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस। So this is our dear Priyanka's career reading. Okay, is she working currently somewhere? So let us see how the story unfolds, because sometimes, as I told you yesterday, it was like, okay, first their feelings, and then about the project, and then in the end about their career. This is what we got. So let us see today how it unfolds. Tarot, please give me cards for Priyanka for her career reading. Okay, so very good card. Okay, so the card of a magician. So maybe currently she is, if you're talking about her career, so maybe she has got all the rights in her hand. Maybe I mean, because this magician is somebody who's got all the tools with him. That means he's got the power to do whatever he wants to do in his life. So that is the reason maybe she's come up with some project or something where the decision lies in her hand. Okay, so she's going to be the decision maker, and maybe the offer is there, and she's been offered something. Makers may be waiting for her to give them a positive reply from her side, maybe समथिंग लाइक दैट। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है म्यूजिशियन का कार्ड है, जैसे म्यूजिशियन के पास सारे टूल्स होते हैं, वो चाहे कुछ कर सकता है, अपने लिए सब कुछ कर सकता है। तो ऐसा ही कुछ पावर, ऐसा ही कोई राइट इनके पास होगा, और मेकर्स ने इन्हें ऑलरेडी कुछ ऑफ़र करके रखा है, और वो शायद उनके पॉजिटिव रिप्लाई के इंतज़ार में है, ये हो सकता है।
तो सेकंड कार्ड देख लेते हैं क्या है. ओके, अगेन दिस इज़ अ कार्ड ऑफ द पास्ट. सबका पास्ट पास्ट पास आ रहा है. कोई भी जन अपने करेंट पार्टनर के साथ, करेंट को एक्टर के साथ, करेंट प्रोजेक्ट के साथ, करेंट म्यूज़िक वीडियो के साथ या फिर करेंट सीरियल के साथ लग नहीं रहा उतना हैप्पी है. तो हर एक को अपने पास्ट के ही, देखिए इन लोगों ने पास्ट में हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी या कुछ भी बनाया होगा. अभी वो सारी, वो जो मैजिक है वो शायद करेंटली ना ये क्रिएट कर पा रहे, ना ही अंकित के इसमें आया था, ना ही सुमान जोड़ी के इसमें आया था. सबको अपने पास्ट के. तो यार जब आप लोग के पास्ट बंदों के साथ आपका इतना अच्छा चल रहा था तो लड़ाई क्यों कर लेते हो उनसे आप, है ना. तो यही सारी बातें हैं. तो शी इज़ ऑल्सो थिंकिंग ऑफ समबडी फ्रॉम द पास्ट और सम प्रोजेक्ट फ्रॉम द पास्ट, something like that. This is what I get. But with magician, these two combination, with the help of other cards, I may be, I'll may be able to do something, to create some storyline. मेरे को लगता है मैं कर पाऊँगी, ऐसा लग रहा है मुझे. तो देखते हैं आगे कौन कौन से कार्ड्स आते हैं. और पता नहीं मुझको क्या हो रहा है आजकल, मैं फंबल कर रही हूँ. तुम लोगों ने नज़र लगा दी क्या यार मुझे? फंबल हो रही हूँ मैं बहुत आजकल. ताबरा कडाबरा, नज़र उतरे, ऑरा क्लियर हो, आबरा कडाबरा. चलो थर्ड देखते हैं क्या है. वाह, तो ये आया है किंग ऑफ सॉर्ड्स. तो देखो, एक तो मैजिशियन का कार्ड इनके पास आया है. तो शी इज़ गॉट ऑल द राइट, ऑल द पावर टू डू वट एवर शी वॉन्ट्स टू टेक डिसीजन ऑफ हर लाइफ. मे बी पीपल दे थिंक दैट शी इज़ quite intelligent enough to take decision of her life, and yeah, at the same time, yeah, she does want to take, but at the same time she is confused also. समझ में नहीं आ रहा इनको. ये होते हुए भी इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है डिसीजन लेने में. ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई है, ओके, जो मैजिशियन का रोल कर रहा है. ये भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी ये खुद है. तो कोई पास्ट में से कोई बंदा है जो इनकी लाइफ में इनका मेंटोर का काम कर रहा है, या फिर कुछ ऐसी बातें करते हैं वो जो इन्हें माननी पड़ती हैं. बड़े लॉजिकल है वो, काफ़ी इंटेलिजेंट भी है और काफ़ी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते हैं. तो उन्हीं का शायद डिसीजन इनके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, आई डोंट नो, लेकिन वो डिसीजन मेकर है इनके केस में, ऐसा मुझे दिख रहा है. ओके, वाह, बहुत अच्छा कार्ड आ गया. तो शायद इन्हें एक नया ऑफ़र आ रहा है. ओके, मैं समझ गई अभी क्या है. नया ऑफ़र आ रहा है. शी इज़ थिंकिंग वेदर टू टेक अप दिस और नॉट, एंड शी इज़ कंपेयरिंग द ऑफ़र विच शी गॉट with the offers which she had in the past or with the work which she did in the past. उसके साथ कंपेयर कर रही है. ये जो ऑफ़र आया है, क्या वो ऐसा ही मैजिक क्रिएट करेगा जो पास्ट में उन्होंने किसी के भी साथ क्रिएट किया होगा? वैसा ही कंपैरिजन उनके दिमाग में चल रहा है. इसी वजह से वो डिसीजन नहीं ले पा रही है कि ऐसा कोई ऑफ़र लेना चाहिए भी या नहीं, क्योंकि उन्हें, बिकॉज शी फील्स दैट कि उसका पास्ट का एक्सपीरियंस जिनके भी साथ था, वहाँ पे बहुत अच्छा सा एक मैजिक क्रिएट हुआ था. एक सेंसेशनल टाइप का शायद कोई काम उन्होंने किया है जो आज तक याद किया जा रहा है. ये हो सकता है. तो वो खुद या फिर उनके लाइफ में कोई है जो उन्हें कह रहा है डिसीजन लेने से पहले सोच लो, क्योंकि ये जो ऑफ़र आया है अच्छा ऑफ़र है, लेकिन क्या ये वैसे ही टाइप का हो? क्योंकि देखिए इन लोगों की पूरी इनका पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है क्या काम कर रहे हैं. एकदम से ये दे नॉट जस्ट काइंड ऑफ टेक सम रिस्क, बिकॉज एक छोटा सा फ्लॉप पूरी पीछे की सक्सेस स्टोरी को वाइप ऑफ कर देता है ना. तो ऐसी गलती करने से वो बच रही हैं अभी. ओके, तो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये ऑफ़र, वो सोच रहे हैं. तो अब फूल का भी कार्ड आ गया. जैसे मैंने कहा था, रिस्क की बात आई, तो रिस्क तो उठाना चाहती हैं ये. ओके, तो नया ऑफ़र आ रहा है, ले लूँ नहीं लूँ, ऐसा वो सोच रही हैं.
कि भाई रिस्क उठा लूँ या फिर सोचूँ, तो दोनों भी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही है। ओके, तो ये इस कश्मकश में है ये अभी। ओके, ओके, आ गया है ऑफर, अच्छा ही है। पेज का आया है कार्ड, तो इट्स गोइंग टू बी गुड ओनली। जो भी इनके इसमें आ रहा है, जो इनको सोचने में मुश्किल जा रही हैं, स्टार्ट करूँ ना करूँ, तो ये कार्ड कह रहा है स्टार्ट तो कर सकते हैं। पेज की एनर्जी ज़रूर है, छोटी है, सक्सेस छोटी भी हो सकती है, लेकिन सक्सेस सक्सेस ही होती है, छोटी बड़ी नहीं बोलते हैं। अब आप हमेशा सोचोगे तुम्हारा जैकपॉट निकले, तो ऐसा होता है क्या? तो कुछ भी हो, पर अच्छा ही है ऐसा दिख रहा है। तो ये ऑफ़र जो है, ये चाहे तो वो ले सकती हैं, क्योंकि ये कार्ड भी साथ में आया है। पर अगर वो पास्ट वाले से कंपेयर कर रही हैं वो, और सोच रही हैं लूँ या न लूँ, तो ये कार्ड कह रहा है ले लो भाई, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तो ऐसा इनका आया है, तो बैड नहीं है, अच्छा ही रहेगा इनका। करियर मुझे लग रहा है इनका अच्छा रहेगा, नॉट बैड। बट इफ़ शी फील्स दैट वैसे ही मैजिक अगर क्रिएट हो जाए, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फ्लॉप नहीं रहेगा। जो भी रहेगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ फ्लॉप स्टोरी फॉर हर। तो शी कैन गो इन फॉर द ऑफर विच शी इज़ गेटिंग। बिकॉज ये कार्ड आया है, इसलिए मुझे लग रहा है कि इनकी एनर्जी ऐसी है, लो नहीं लो। कार्ड्स कह रहे यस यू कैन टेक, दैट मे नॉट बी दिस वंडरफुल, बट येस गुड ओनली। सो ये है हमारी प्यारी प्यारी सी प्रियंका की रीडिंग, जो अच्छी है। करियर अच्छा ही दिख रहा है इनका, नॉट बैड, ठीक ठीक। ओके, अब एक काम करते हैं, हम सबकी करेंट फीलिंग्स ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम करेंट फीलिंग्स सुमन की लेंगे, हम यहाँ करेंट फीलिंग्स प्रियंकित की भी ले लेंगे। और कौन सी है ऐसी जोड़ी? क्या क्या कहा था यार, मुझे कुछ नहीं मालूम। कोई एक है, कोई बंदा या बंदी, आई डोंट नो, जो कंटिन्यूसली एक ही पेज पे बार बार सेम मैसेज कर रहा है या कर रही हैं वो। समथिंग अबाउट ईशा मालविया। वो कह रही हैं कि वो जा रही हैं बिग बॉस में, उनका रीडिंग लो, उनका रीडिंग लो। तो क्या पूछ रहे मैडम आप? पहले तो मेरे को ये नहीं समझा। व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट हर? क्या पूछना चाह रहे हैं उनके बारे में आप? कैसा रहेगा उनका करियर? आप ये पूछना चाह रहे हैं, क्या पूछना चाह रहे हैं? प्लीज़ मेरे को फिर से मैसेज में आप क्लियरली लिख दो। ओके, तो अभी आई एम टेकिंग करंट फीलिंग्स ऑफ सुमान, जो शॉर्ट रीडिंग रहेंगी, एंड करंट फीलिंग्स ऑफ प्रियंकित। ये दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हैं। एक हाईलाइटेड एनर्जी ज़रूर मैं लूँगी। सुमान की क्या है? मास्क। तो ये दोनों छुपा रहे हैं कुछ। ओके, इधर कुछ गड़बड़ है जो आपको, मुझे, हम सबको, किसी को नहीं मालूम है। तो दे आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम ऑल ऑफ अस, और दे मे बी हाइडिंग समथिंग फ्रॉम ईच अदर। Okay, there is some kind of a secret. Okay, so there is some kind of a truth, okay, which we should be knowing. Okay, so they are hiding something. ये दिख रहा है। प्रियंकित की देख लेते हैं। फैमिली इशू। तो प्रियंकित लोगों के केस में फैमिली इशू आ रहा है, तो इन दोनों को लेके इनके फैमिलीज जो हैं वो शायद बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं हैं, या फिर किसी बात पे उन लोगों के डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं। तो दे मे नॉट बी हैप्पी, देयर फैमिलीज मे नॉट बी हैप्पी, दे मे बी हैविंग सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, देयर फैमिली पीपल मे बी हैविंग। ओके, सो दिस इज व्हाट आई गेट। सो गाइज, प्लीज स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइज। It is not about how lengthy the reading is, okay? It is about how true the reading comes, okay? How much clarity the reading can give you. This is what matters, not the length of the reading. तो ऐसा कंप्लेन मत लिखो। The faster the reading is getting wrapped up, the faster you are getting the result. At the same time, it also proves that the tarot is listening to you, speaking to you properly. Okay, टैरो आपको अच्छे से आंसर कर रहा है, इसका मतलब टैरो आपको सपोर्ट कर रहा है, इसका मतलब। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई के ऊपर मत जाओ।
ओके, छोटी रीडिंग बड़ी रीडिंग नहीं होता है, रीडिंग क्लियर होनी चाहिए। ओके गाइस, मेरे को छोटा चॉकलेट मिला, उसको बड़ा मिला, ऐसा नहीं होता बेटा। ओके, तो ये आया था हमारी सुमन की मास्क आया था। तो देखते हैं क्या है इन लोगों की करंट फीलिंग्स, आखिर ये मुखौटा पहनने वाले बंदे कर क्या रहे हैं, ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, हमको, तुमको, या खुद को, किसको बना रहे हैं। चलो देख लेते हैं। ओके चलो गाइस, so the first card for Suman, their current feelings for each other. वाओ क्या बात है, ये साले अपने सपने पूरे कर रहे हैं और हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ऐसा है क्या? विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है, तो सारी दुनिया रो रही इनके पीछे, ये मस्तियाँ कर रहे हैं, ऐसा है क्या? व्हाट इज़ इट, है ना गाइस, क्या बोलते हो? दारू शारू पार्टी होती है, मस्तियाँ करते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हैं एंड लोगों को बता रहे हैं कि हम तो दोनों अलग अलग हैं, हमारा तो झगड़ा हो गया है, और फैंस बेचारे पागल हो रहे हैं उनके पीछे, ऐसा है क्या? है ना गाइस, मैं आप लोग के साथ हूँ। ओके, सेकेंड कार्ड, डेथ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स। देखो इन लोगों का मैं बताती हूँ। ओके ओके, बहुत अच्छी रीडिंग आ रही है, तो बी पेशेंट, बी पॉजिटिव एंड हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द रीडिंग। वाओ कमाल, वाह, करंट है, करंट फीलिंग्स तो देखो इनकी, डिजास्टर भी आ गया। ओके, they are behaving as if everything is finished between them, they are behaving that they no more long for each other, they are behaving that as if there's nothing left between the two of them, they are behaving as if they have parted of their ways, they are behaving that there is nothing that you guys can expect from them. This is what they are behaving. Okay, but this is just a fake news. Okay, they are masking their feelings also, and they don't want to tell you the truth. ये हो रहा है इनका। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सोच रहे कि अभी हमारे बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं हो रहा है, हम दोनों ने अपने अपने रास्ते ले लिए हैं, अब हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा ये लोगों को बता रहे हैं, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। ओके, ऐसा बता रहे हैं जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। ओके गाइस, मान के चलो, अगर मैं बोल रही हूँ तो मैं सच बोल रही हूँ। यस, सो so they want to see your reactions, they want to see the reaction of the public, you know, what type of reaction is that they are going to be getting out of, because they are all, you know, they all crave for this attention, they all crave for your love, they all crave for this name, fame, popularity, they all do that, and it's very obvious also, and very normal also for these people to have such kind of a feeling. तो ये देखना चाहते हैं कि पब्लिक कैसा रिएक्ट करती हैं, यू नो, ये सारी चीज़ें ये जानना चाहते हैं। ओके, तो वाओ, वाह आ गया। Wow, finish, very good. So guys, these people are masking their feelings from each other,
ट्रू फीलिंग्स फ्रॉम ईच अदर, अपने ट्रू फीलिंग्स को छुपा रहे हैं एक दूसरे से। अभी भी वो प्यार वो मोहब्बत है इनके अंदर बरकरार, मान के चलिए। अभी वो अपने अपने पर्सनल ग्रोथ पे फोकस्ड है, जो गलत नहीं है। सेपरेशन है दोनों के बीच में अभी, ठीक है। अकेला भी फील कर रहे हैं एक दूसरे के बगैर, ओके। एंड या दे आर सैड, आई अंडरस्टैंड। एट द सेम टाइम कुछ मिरेकल हो जाए इसके इंतज़ार में तो है ही, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ पहले वो आना चाहिए। अरे वो नहीं आएगा तो मैं क्यों जाऊँगी, ऐसी वाली एनर्जी में। लेकिन अंदर ही अंदर तो लड्डू फूटते रहते हैं इनके। एक बार ये साथ में हो जाए ना तो अरे आई एम सॉरी रे, आई एम सो सॉरी माय लव, ओ माय गॉड, ओ माय जानू, ओ माय पुच्चू, ओ माय कुच्चू, ऐसे ही बोलेंगे एक दूसरे को, ऐसे हैं ये। और ये दोनों के बीच में हीलिंग भी होगी और इनका रिकन्सिलेशन भी हो सकता है। ये सिर्फ मास्क कर रहे हैं अपने फीलिंग्स को। अभी ज़रूर ये है कि भाई ये डिप्रेशन पैच भी है और सेपरेशन पैच भी है, दोनों भी है। और उस पीरियड में क्या है, दे आर वेरी दुखी, separated, feeling lonely, feeling unloved and uncared. They are dukhi about that, very sad about that, looking for some opportunity so that all of a sudden something can happen, some kind of a new beginning. Given a chance, that they will say sorry to each other, sure. Healing, yes, healing energies are there. रिकन्सिलिएशन, ओके, ये हो जाएगा इनका। ये सिर्फ आपको, मुझको और सारी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सो दे लव ईच अदर गाइस। तो ये है हमारे, ये क्या बोलना रहे, इनका नाम दे दो यार, क्या धोखेबाज है ये लोग। इनकी एनर्जीज़ हैं, ओके। सुमान पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे। अब ये ले लेते हैं हम इनकी एनर्जी। कौन है ये, हमारे प्रियंकित की एनर्जीज क्या है, ओके। ये लोग सीधे हैं यार, ये लोग, ये दोनों वहाँ चालू है। प्रियंकित, ओके, इनके बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, डाउट है दोनों को। ये सच में कुछ है गड़बड़, किसी की पीठ के पीछे कुछ हो रहा। अब तक के तो बड़ा अच्छा आया था इन लोग का, और देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, सम काइंड ऑफ फिशी थिंग इज गोइंग ऑन, और मे बी देयर इज एन एंट्री ऑफ समबडी एंड दीज टू आर डाउटिंग ऑन ईच अदर, और मे बी समवन इज डाउटिंग ऑन समवन। दिस इज व्हाट इट सेज, सो समथिंग फिशी इज गोइंग ऑन, ओके। ऐसा दिख रहा है अभी करंट एनर्जी में। तो दीज पीपल ऑल्सो मे बी, यू नो, दे आर हाइडिंग समथिंग फ्रॉम ईच अदर, नॉट देयर ट्रू फीलिंग्स और देयर लव फॉर ईच अदर, बट समथिंग, ओके, सम हिडन एनर्जीज, ओके। या कोई डिसीव कर रहा है किसी को, ये भी हो सकता है, आई डोंट नो। यस, या, so they have this feeling that, and I think whoever has deceived, you know, the other one, that person has already come to know about it, okay। जिसने भी किसी को भी यहाँ पे डिसीव किया है, वो बंदे को पता चल गया है कि कुछ गड़बड़ घोटाला, ओके। फोर ऑफ वॉन्ड्स आया है, जो फैमिली बता रहा है। तो फैमिली में कोई है, फैमिली में से कोई है, ये बंदा या बंदी, जो शायद ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है जहाँ पे आप लोग सुन के थोड़ा शॉक हो जाओगे जब सुनोगे, तो ऐसा ही कुछ दिखाई दे रहा है। देखो इनका भी वही है, क्या है ना ये लोग का, उसका भी ये, इसका भी ये कुछ तो भी एक ऐसा आपको शॉकिंग न्यूज़ मिल सकती है इन लोगों के, ओके। ये फैमिली के बीच में कुछ झगड़ा हुआ है 100%, तो मैं, आप अच्छे, मैं, हम बुरे, तुम बुरे, अच्छे, समथिंग लाइक दैट, सम अगली फाइट, some ugly argument, something between the families, okay, some ugly kind of a scene, you can say, some fight, some arguments, something,
Okay, and somebody or I don't know, but they want to escape from the current situation. They don't want to give any commitment to anybody, so they are in a mood to cheat each other, I don't know. Something like that. So things are not really good between the families because ये family का card है. Okay, elders from the family may not be happy or may be having difference of opinions, and due to which this ugly fight is going on. Yes. Okay, this is what I feel. So not really happy family people, maybe. यार तुम लोग कैसा रोने लग जाते यार, तुम्हारा ना लेना यार. आई अंडरस्टैंड तुम इनके फैंस हो, पर होगा वही जो उनके वो दोनों और या उनके फैमिलीज चाहेंगे. इसमें तुम लोग कहीं को रोने धोने छातियाँ पीटने लग जाते अपनी. आई डोंट अंडरस्टैंड. अरे वाह, तो ठीक है यार. ओके, सम फाइट्स गोइंग ऑन, सम arguments going on, may not be that happy or that pleasant a situation, but this card has saved the scenario. Okay, this card has already saved the scene. So yes, there will be some healing thing going on, will be okay. तो things will be sorted out between the families, ऐसा लग रहा है. तो ये सब अभी हुआ होगा या चल रहा है या हो सकता है कुछ भी, लेकिन सॉर्ट आउट हो जाएगी चीज़ें, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से शायद कोई एक बंदा आएगा जो समझदार रहेगा, इनको समझाएगा, और इनके बीच में जो हो रहा है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे ये लोग और चीज़ें इन लोगों के बीच में ठीक हो जाएगी. Okay, the things will be sorted out between the families. This is what I get from this card. Okay, तो ये है अभी इनका. Wow, somebody with the cup of love, a new person or the same person, or if there's some fight or something, then somebody is coming with the cup of apology. ओके, तो ये माफ़ी का माफ़ी लेके कोई आ रहा है. ये दोनों तरफ से होगा. दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देंगे जो भी इन लोगों के साथ प्रॉब्लम हुई है. थिंग्स इन लोगों के बीच में अच्छी हो जाएगी. ओके. अभी अगर कुछ गड़बड़ चल रही है फैमिली की वजह से दोनों के बीच में या फैमिलीज़ में ही हो रही है, तो थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट एंड दोनों एक्सचेंज करेंगे अपॉलॉजी. ओके. एंड ये सब चीज़ों का जो मसला चल रहा है बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी. ये थर्ड पार्टी की वजह से ये सब हो रहा है इनके बीच में. ओके, बिकॉज ऑफ दिस थर्ड पार्टी समथिंग इज हैपनिंग. गॉट इट गाइस? बट थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट. Okay, they both will forgive each other, the families, or two of them, I don't know. And whatever ugly, either a verbal spat or yes, of course, verbal only. I don't think so hatapai ho rahi hai and something. But yeah, if they was hiding something or there was some kind of a betrayal or a deception was going on, that will be ended. Okay, both of them will be united. Reconciliation, apology, and this lady will guide everything. Lady or a gent, I don't know who. This will bring this and the union. Okay, so this lady is very sensible. Okay, so she only will bring, she or he, whoever they are, will bring peace between the families and between these two. Okay, yeah, तो ठीक हो जाएगा. अभी ठीक नहीं चल रहा लेकिन ठीक हो जाएगा. फैमिली इश्यूज़ हैं, ठीक नहीं चल रहा अब, लेकिन सब हो जाएगा ठीक. अभी कौन था यार? और कोई है? बोलो. आज मेरे पास एनर्जी है इसलिए मैं कर दे रही हूँ. और कौन था? कोई नहीं, मुझे किसी का नाम नहीं याद आ रहा.
So with this, I end my reading for you for today. So until I meet you again, please do take very good care of yourselves. Bye bye, guys.